Good evening and welcome all to the Taxo Primetime series on GST litigation and assessment. I, Advocate Achal Srivastav, welcome all our attendees today to the latest session of Taxo Primetime. As you all may be aware, Taxo Primetime is our weekly webinar session on important developments in GST, latest judicial pronouncements, and unfolding complex topics simple. On 25th March 2022, we together have started this journey to deliver 40 sessions within a span of 1 year. Today, I am glad to announce that within 6 months of time, we have achieved half of the milestone by delivering 20th lecture today. Since we have discussed ample of topics in past sessions like summons, inspection, search, seizure, audit, offences, and penalties from the GST law, now, moving ahead in today's session, one of the most crucial and important topic will be covered, that is demand and recovery, and show cause notice and appeals. In today's session, we will have with us C.N. Mulgupta ji, an indirect tax expert holding vast experience in tax litigation. He'll give you a detailed analysis of the provisions, circulars, notifications, case laws, etc. related to the topic. Today's Taxo Prime Time on GST litigation and assessment will deal with its fourth and last topic, that is demand and recovery, covered under section 73 to 84, and show cause notice and appeals, covered under section 107 to 121. I request our honorable speaker to enlighten the session. Thank you, Anchal. Am I audible? Yes, sir. Yeah. So at the outset, I would like to congratulate you and Team Taxo for achieving this milestone of 20 sessions in a span of less than 6 months. So you all have fulfilled achieved half of the milestone that you promised in Taxo Prime Time. Again, I would like to thank everyone, all the participants who have joined us today. Talking about the topic, we've started this Taxo Prime Time series on GST litigations and assessments, in which we covered 3 lectures earlier, and today is the last and fourth leg of the Prime Time series on GST litigation. Earlier, we have discussed topics like inspection, search, seizure. We discussed topics like assessments and audits. We discussed topics like offenses and penalties, where we discussed all the offenses that are there under the GST laws and what are the penalties and punishments under GST law. We discussed what are the provisions related to inspection, search, different kinds of search, then seizure, what are the rights and liabilities of the assessee in case of inspection, search, and seizure. We talked about arrest provisions also under section 69. Then we talked about different kinds of assessment of non-filers of return, assessment of scrutiny of return. Now we are into the last leg of the our series of GST litigation or assessments, where we are going to discuss the conclusion of this topic. So like we discuss, जैसे कि हम कोई एक स्टोरी सुनाते हैं, तो उसमें जो उसका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक कंक्लूजन होता है कि अल्टीमेटली जब हमने इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर पढ़ा, हमने असेसमेंट पढ़ा, हमने ऑडिट पढ़ा, तो इन सब को होने के बाद क्या होगा, एक क्वेश्चन आता है. हमारे पे एक एसएससी पे ऑडिट हुआ, एक एसएससी पे इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर की प्रोसीडिंग्स हुई, एक एसएससी का अरेस्ट हो गया. तो अल्टीमेटली ये सारी प्रोसीडिंग्स, ये सारी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या ऑडिट प्रोसीडिंग्स जो है, ये कल्मिनेट होके क्या रिजल्ट करेंगी. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, एंड इन दैट वी आर डिस्कसिंग what are the rights and liabilities of the assessee again, what are the various provisions on demands and recovery and appeals and revision, and then how to deal with those rights of filing a reply to SCN or filing an appeal before the appropriate forum. So we are going to discuss all of these along with the supporting case laws and everything. So quickly sharing my screen for the presentation. Aanchal, are you able to see the slideshow that I have just started? Aanchal? Yeah. Yeah. Yes, sir. Okay. Yeah. So now the topic for today is demands and recovery along with appeals and revision. So I bifurcated today's topic into 5 parts. One is demand, wherein we are going to discuss 4 sections. Then there is a second topic of recovery, wherein there are many
many sections, different modes of recovery by the officer, and many rules corresponding to those sections. Then the third topic is provisional attachment, where there is just one section and ample of case laws on that particular section. Then the topic is appeals, which starts from section 107. Then there is a single section on revisional authority, that is where an order has been passed, what are the options regarding the revision of that particular order. So since today's topic is very vast and we have got very limited time, just 1 hour to discuss the entire topic, so we are going to touch upon the most important aspects of the today's topic, which are demand, appeals, and revisional authority. So I have the presentation ready with me regarding the recovery and provisional attachment. Provisional attachment, we have already discussed in detail the provision, the circular, the SOPs regarding the provisional attachment, as well as the case laws in previous sessions of Taxo Prime Time. But regarding the recovery, I believe the demand, appeals, and revisional authority are far more important topics, because they lay down the foundation for the recovery mechanism, and recovery mechanism is anyhow is to be initiated by the department. So first we are going to discuss these 3 topics of demand, appeals, and revisional authority, and then if we get the time remaining, we will discuss the provisions of recovery mechanism. So regarding the background of the today's topic, we have 2 topics to be discussed today. Chapter 15, which talks about demands and recovery, which have section 73, which talks about SCN in case of non-fraud cases, section 74, which have SCN in the case of fraud cases. Corresponding rules are Rule 121 and Rule 142. The forms are DRC 1 to DRC 8. Then regarding the demands only, general provisions relating to determination of tax in section 75, no rule, no form. Tax collected but not paid to government, section 76, again the same rules and the same form as in section 73 and 74. Then there is a miscellaneous section of section 77, which talks about if you have paid CGST and SGST, however, the correct head under which tax was to be paid was IGST, then you have to seek refund of CGST and SGST wrongly paid, and you have to pay IGST separately. However, there will be no interest liability in that scenario, and vice versa. That is, if you have paid IGST and C and S was the correct head to be paid, then you have to seek refund of IGST, and you have to pay C and S extra, and no interest liability will arise. So section 77 was this was all in section 77. Then from section 78, recovery proceedings initiate, the provisions relating to recovery proceedings initiate. Section 78, 79, 80, 81, 82, 83 and 84 are all recovery the sections covering provisions on recovery proceedings. In this section 78 to 84, there is a section of section 83, provisional attachment. This is a very small section, only one subsection. However, there are ample of case laws on this particular section. Whether the provisional attachment can continue beyond 1 year, no. It is written in the law itself, but in many cases the provisional attachment continues for more than 1 year. So there are many case laws on that. Regarding the principles of natural justice, there are many case laws on provisional attachment. So in this way, the provisional attachment, the topic of provisional attachment falls. So then the second topic for the day is appeals and revision, which is under chapter 18, which talks about section 107, talks about appeal to first appellate authority, that is commissioner appeals. Corresponding rules are 108, 109, 9A, 113, and the forms are APL 1 to APL 4. Then there are powers of revisional authority, section 108, rule is 109B, form is APL 04, and one form is RVN, that is revision, RVN 01. Then 107 talks about appeal to first appellate authority. From 109, it talks about appeal to second appellate authority, which is GST tribunal, which is not constituted yet. Section 109, 1110, 112, sorry, 1111, 112, 113, and 114 talks about this appeal before the first tribunal, the second appellate authority, that is tribunal only. In this particular thing, 109, 110, then 113 and 114 are kind of procedural in nature. By procedural, I mean that there are only the rules and the mechanisms that have to be prescribed by the government. For example,
the president to hold office along with so and so members of the tribunal. So these are all the constitutional stuff which has not been prescribed yet, since the tribunal has not been formed. Therefore, there is no need to go into these sections. But however, we are going to discuss section 112, the appeals to appellate tribunal, and the orders of appellate tribunal 113. Then coming to section 115, which talks about interest on refund of pre-deposit that we have to make. We are going to discuss the provisions of pre-deposit, and if you win the case, then you have to seek refund of pre-deposit, that we are going to discuss in section 115. Then section 116 talks about appearance by authorized representative. It is again a very miscellaneous section. It only says that the relative of the assessee aggrieved, or the assessee himself, or any employee of the assessee, or an advocate, or a cost accountant, chartered accountant, can appear before the appellate authorities below the high court level. So this is again a very small and miscellaneous section. Then section 117, which talks about appeal to high court. Section 118, which talks about appeal to Supreme Court. The relevant rules are 114 and 115. The relevant forms are APL 04 to APL 08. Then 119 is sums due to be paid notwithstanding appeal, etc. Very miscellaneous section, nothing important to be discussed about. Section 120 talks about appeal not to be filed in certain cases. It lists out 4 cases wherein appeal is not to be filed. No appeal is admissible before the first appellate authority. Then section 121, which talks about non-appealable decisions and orders. Now coming to the topic, before coming to the topic, it is very important to understand what is the flow of litigation. अगर सर आपको यही नहीं पता होगा कि litigation कैसे assessment proceedings हुआ, उसके बाद कैसे कैसे notice आएगा, कैसे appeal करना है, किसको पहले, so it would be very cumbersome task to understand. It was a really difficult task to understand the provisions that I am going to discuss today. So we are going to discuss the flow of litigation in a very brief manner. So the litigation arises from 4 proceedings. I have bifurcated the proceedings into 4 different parts. First is assessment, which we discussed in the very first session of this series on GST litigation, which covers chapter 12, in which there are different types of assessment. If I recall, self-assessment, provisional assessment, assessment for non-filers of return, assessment of unregistered persons, summary assessment, and assessment of scrutiny of returns. So there are 6-7 sections which talks about different assessments. Then chapter 13 talks about audit, wherein there are 2 sections, section 65 and 66. Section 65 is audit by the department. Section 66 is audit by a special auditor appointed by the department, that is either a cost accountant or a chartered accountant appointed by the department. Then there may be regular inquiries or investigation. You might have come across various notices issued by the department, wherein department seeks roving inquiries. For example, they seek normal data. Let's say they ask for a balance sheet or any books of accounts or stock register or anything. So all those regular inquiries or investigation culminate into issuance of show cause notice, and then there are other proceedings. For example, कोई penalty proceedings हैं आपके ऊपर, या फिर मान लीजिए ई-वे बिल की proceedings हैं, तो कोई भी proceedings अगर आप पे कोई other than regular inquiry, audit या assessment, कोई भी special proceedings अगर आप पे होती हैं, जैसे DGCI की proceedings आप पे होती हैं, inquiry की, CAG की proceedings आप पे होती हैं, तो all these proceedings result in issuance of show cause notice. मतलब कि अगर मान लीजिए इन चारों प्रोसीडिंग्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नोटिस होती है और ऑफिसर हमारी सबमिशन से सेटिस्फाइड नहीं है और हम टैक्स जमा नहीं कराते हैं, तो शो कॉज नोटिस विल बी सर्व्ड अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74. आपके पास राइट है कि आप उसका रिप्लाई फाइल, आफ्टर फाइलिंग रिप्लाई एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी ग्रांटेड इन व्यू ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड देन एन ऑर्डर एडजुडिकेटिंग ऑर्डर, or we can say order in original, will be passed by adjudicating authority. The terminology order in original is generally used by central government from the erstwhile regime of service tax, central excise laws and customs law. However, state government does not use the word order in original. They simply use the word order in the prescribed form or format. Then against the order in original, the assessee or the department has the right to file appeal before the first appellate authority. We are going to discuss who is the first appellate authority, what is the time limit, in what form
the appeal has to be filed, how the appeal has to be filed, we are going to discuss all, but right now we are just discussing the litigation flow. Then after affording an opportunity of being heard, an appellate order has to be passed, which commonly referred by CGST authorities as order in appeal. This will be passed by the first appellate authority. Against the order in appeal, the second appeal lie to GST appellate tribunal, which can be filed either by the assessee aggrieved or the department aggrieved. Then after affording an opportunity of being heard by the GST appellate tribunal, a final order will be passed by GST appellate tribunal, which is the second appellate authority. Then against that order, an appeal to High Court or Supreme Court can be filed by the assessee or the department, depending upon the question that arises from the final order of the appellate tribunal. And then a final order will be passed by High Court or Supreme Court, and depending upon the type of order, the matter attains finality basis the order of High Court or the Supreme Court. तो अगर हम बात करें सर लिटिगेशन फ्लो की, तो जो पहला ब्लैक कलर से मैंने मार्क किए हुए हैं 4 बॉक्सेस, जिसमें शोकॉज नोटिस आया, रिप्लाई दिया, हियरिंग हुई और ऑर्डर पास हुआ, इन 4 स्टेप्स को बोला जाता है एडजुडिकेशन प्रोसीजर, जिसमें आपका शोकॉज नोटिस की एडजुडिकेशन होती है. जो शोकॉज नोटिस आप कभी भी डिमांड कंफर्म करके नहीं आ सकता. शोकॉज नोटिस आपकी डिमांड प्रपोज करता है कि हमने एज पर दी असेसमेंट कैरीड आउट और एज पर दी ऑडिट कैरीड आउट, वी अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, so and so liability along with interest and penalty arises upon the assessee, and therefore you are requested to show cause as to why this amount should not be recovered from you. तो अमाउंट शो कॉज नोटिस में प्रपोज की जाती है और एडजुडिकेटिंग ऑर्डर के बाद आपकी अमाउंट फाइनल हो जाती है. तो अगर एडजुडिकेटिंग ऑर्डर में शो कॉज नोटिस में आपके 100 रुपीज की डिमांड निकाली गई और ऑर्डर इन ओरिजिनल में उस 100 रुपीज की डिमांड को 60 रुपीज का कर दिया गया, जिसमें या तो डिमांड पूरी ड्रॉप की जा सकती है 100 रुपए की, पूरी 100 रुपए की कंफर्म की जाती है, पार्टली ड्रॉप एंड पार्शली कंफर्म की जा सकती है. एग्जांपल 60 रुपीज की कंफर्म कर दी, 40 रुपए की ड्रॉप कर, तो उस केस में कहा जाएगा कि एडजुडिकेशन ऑर्डर जो है पास हो गया, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स हैव कम टू अ कंक्लूजन. देन द बॉक्सेस मार्क्ड इन ग्रीन refers to the first appellate function, the first appellate proceedings. Then the boxes marked in yellow are the second appellate proceedings, and then the boxes marked in blue are the proceedings before High Court or the Supreme Court, that is the higher forum, the full judicial. Then coming to the first topic, demands. In the topic of demands, we have 4 sections to be discussed today: section 73, 74, 75 and 76. Section 73 talks about show cause notice, issuance of show cause notice in non-fraud cases. Section 74 talks about issuance of show cause notice in cases of fraud. Section 75 talks about general provisions relating to section 73 and 74. And section 76 talks about tax collected but not paid to the government. So in case of section 74, a show cause notice can be served in 4 scenarios. First being tax not paid to the government, which was liable to be paid. टैक्स शॉर्ट पेड टू द गवर्नमेंट, मतलब टैक्स पे करना था लेकिन आपने 20-80 रुपए की शॉर्ट पेमेंट है, नॉन पेमेंट का 100 रुपए का नहीं पे करा. टैक्स इरोनियसली रिफंडेड, मतलब आपने रिफंड अप्लाई किया और सरकार ने आपको रिफंड दे दिया, लेकिन बाद में सरकार ये रिफंड आपका बनता ही नहीं था, तो इट इज इरोनियस रिफंड, अ मिस्टेकन रिफंड सैंक्शन टू द असेसी. एंड देन द फोर्थ सिनेरियो बीइंग आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज. तो अगर मान लीजिए आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल कर लिया या यूटिलाइज कर लिया, तो उस केसेस में, इन 4 केसेस में आपको शो कॉज नोटिस सर्व हो सकता है. अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि क्या शो कॉज नोटिस सेक्शन 73 में होगा, 74 में होगा, और क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये 3 है. अगर आपके केस में आपका टैक्स ना पे करना, आपका टैक्स कम पे करना, आपका टैक्स गलत तरीके से रिफंड ले जाना, या फिर आईटीसी रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज करना, अगर इन 3 वजह से है तो आपका 73 में 74 में होगा, और अगर नहीं है तो 73 में होगा. क्या है वो केसेस? फर्स्ट इंग्रेडिएंट टॉक्स अबाउट फ्रॉड. सो वेदर इफ देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फ्रॉड behind non-payment of taxes, short payment of taxes, ITC wrongly availed or refunded, utilized, or tax wrongly refunded, then in that case, show cause notice has to be issued under section 74, wherein penalty is 100%. If there is an element of willful misstatement means आपने जानबूझकर डिपार्टमेंट को गलत डेटा दिया, मिसस्टेट किए अपने फैक्ट्स, आपने गलत फैक्ट्स डिपार्टमेंट के आगे प्रेजेंट किए, या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स. सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स मींस कि आपने फैक्ट्स को छुपाया, आपने फैक्ट्स को दबाया.
आपने एक्चुअल फैक्ट्स, जो करेक्ट फैक्ट्स हैं, वो डिपार्टमेंट के आगे नहीं आने दिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बीइंग टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो अगर मान लीजिए फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ये तीनों इज नॉट लीडिंग टू एनी इवेजन ऑफ टैक्सेस, then it will not be said that extended period of limitation is to be invoked under section 74. Then show cause notice under section 73 will be issued wherein penalty is 10%. तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? सेक्शन 73 जो है वो थोड़ा सा सिंपल सा है, वो नॉन फ्रॉड के केस में, लेकिन सेक्शन 74 जो है वो थोड़ा सीरियस ऑफेंस है, वो थोड़ा सीरियस शो कॉज नोटिस है, क्योंकि उसमें आप पे फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सपरेशन ऑफ फैक्ट्स, इवेजन ऑफ टैक्सेस जो है आपके ऊपर लगाता है डिपार्टमेंट, और उसमें पेनल्टी भी 100% हो। अब हम ऐसे ही कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स की बात करेंगे। सेक्शन 73 और 74 में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, जो एडजुडिकेशन ऑर्डर पास होगा सेक्शन 73 में, सेक्शन 74 में 5 साल में पास होगा। अब क्वेश्चन आता है ये 3 साल 5 साल हम कहां से कंप्यूट करेंगे? तो अगर मान लीजिए आपकी टैक्स की शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट या आईटीसी की रॉन्ग अवेलमेंट है या यूटिलाइजेशन है, तो उस केस में जिस भी फाइनेंशियल ईयर को वो डिमांड पर्टेन करती है, उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट से 3 साल या 5 साल। तो इसी से आपको समझ आ रहा है कि सेक्शन 74 जो है वो थोड़ा ज्यादा सीरियस इन नेचर है, क्योंकि उसमें एक्सटेंडेड पीरियड, लार्जर पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है इन्वोक करता है डिपार्टमेंट, और आपका 5 साल की डिमांड निकाल सकता है, जबकि 73 में 3 साल के बाद डिमांड टाइम बार्ड हो जाती है। और अगर मान लीजिए आपका इरोनियस रिफंड का एक केस है, तो उस केस में जिस दिन आपको रिफंड मिलता है उससे 3 साल या उससे 5 साल, सेक्शन 73 या 74 में। अब ये तो हमें पता चल गया ऑर्डर कब तक पास होएगा। अब क्वेश्चन आता है एससीएन कब तक इशू करना है। तो अगर मान लीजिए आपका 73 का केस है, तो 3 साल में आपको जो है ऑर्डर पास करना है, और उससे एटलीस्ट 3 सर साल भर पहले भी शो कॉज नोटिस आ जाए, कोई बार नहीं किया हुआ। सेक्शन 73 में ये बोला हुआ है कि एटलीस्ट 3 शो कॉज नोटिस दे देना है, 3 महीने के बाद आप शो कॉज नोटिस नहीं दे सकते। तो सिंपल टर्म से बात की जाए तो शो कॉज नोटिस इशू करने का टाइमलाइन है 2 साल 9 महीना फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, और ऑर्डर इशू करने का टाइमलाइन है 3 साल फ्रॉम द रेलेवेंट डेट अंडर सेक्शन 73। सिमिलरली सेक्शन 74 की बात की जाए तो 2 साल 6 महीने के अंदर अंदर आपको शो कॉज नोटिस इशू कर देना है सेक्शन 74 में, और 5 साल के अंदर अंदर आपको ऑर्डर पास कर देना है, सॉरी 4 साल 6 महीने में आपको सेक्शन 74 का नोटिस इशू कर देना है, और 5 साल में आपको जो है ऑर्डर पास कर देना है। अब यहां पे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। प्रॉब्लम क्या थी कि वहां पे जो टाइम लिमिट 3 साल की या 5 साल की दी गई थी, वो टाइम लिमिट दी गई है शो कॉज नोटिस इशू करने की, और ऑर्डर के लिए मैंडेटरी नहीं है, एक वॉलंटरी टाइमलाइन जो है दी गई है, लेकिन उसको जनरली कोई भी फॉलो नहीं। बहुत सारी जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स की जिसमें बोला गया कि अनरीजनेबल टाइम पीरियड का लैप्स है एडजुडिकेटिंग ऑर्डर पास करने में। जैसे एग्जांपल है कि अगर कोई एससीएन इशू हुआ आज, और उसके 5 साल बाद जाके एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ, या 10 साल बाद जाके एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ, तो उस केस में उन ऑर्डर्स को सेट असाइड किया गया है हाई कोर्ट्स ने, कि आप एक अनरीजनेबल टाइम फ्रेम में अपनी एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स जो है कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी डिमांड कंफर्म कर रहे हैं एसएससी के अगेंस्ट। तो जीएसटी लॉ में एक बहुत अच्छा चेंज लाया गया, जिसमें यह बोला गया कि आपका जो ऑर्डर की टाइमलाइन है वो ही स्ट्रिक्ट कर दी है, वो ही फाइनलाइज कर दी है, और अगर मान लीजिए इस टाइम तक ऑर्डर पास नहीं होता है तो माना जाएगा कि आपका एससीएन जो है वेकेट कर गया, आपका एससीएन खत्म हो गया, आपके अगेंस्ट कोई डिमांड नहीं परसिस्ट करती है। अब पेनल्टी 73 में जो है वो लगेगी 10% ऑफ द टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर। तो अगर मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपए की डिमांड है, तो सेक्शन 73 में 5 लाख रुपए का 10% मतलब 50,000, या फिर 10,000 विच एवर इज हायर, तो इस केस में 50,000 रुपए की आप पे पेनल्टी जो है लग जाएगी। लेकिन सेक्शन 74 में इक्विवेलेंट अमाउंट की 100% ऑफ द टैक्स डिमांड, प्रपोज डिमांड जो है आप, जिसका मतलब अगर 5 लाख रुपए की डिमांड है तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी आप पे लग जाएगी। अब 3 सिनेरियोज है हमारे पास जिसमें रिड्यूस्ड पेनल्टी का बेनिफिट मिलता है अगर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आप जो है पे कर दें। अगर आप एससीएन से पहले पे कर देते हैं तो सेक्शन 73 में कोई पेनल्टी नहीं लगती है, सेक्शन 74 में 15% पेनल्टी लगती है। 30 दिन के अंदर अंदर पे कर दें तो सेक्शन 73 में कोई पेनल्टी नहीं लगती है, सेक्शन 74 में 25% की पेनल्टी लगती है। और अगर मान लीजिए आप ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर पे कर दें तो सेक्शन 74 कहता है कि 50% पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 73 में ऐसा कोई प्रोविजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर मैं सम अप करूं दोबारा से रिड्यूस्ड पेनल्टी के प्रोविजंस, तो एससीएन टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी पे कर दिया तो 73 में प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। सेक्शन 74 में आपको 15% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी एससीएन आने से पहले। अगर मान लीजिए आपका एससीएन आने के 30 दिन में आप पेमेंट कर
तो सेक्शन 73 में आपको कोई पेनल्टी पे नहीं करनी है। सेक्शन 74 में आपको टैक्स डिमांड, उसका इंटरेस्ट और उसकी 25% पेनल्टी जो है आपको पे करनी है 30 दिन के अंदर अंदर, और प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए आप ऑर्डर इन ओरिजिनल जो एडजुडिकेशन ऑर्डर है उसके 30 दिन के अंदर अंदर टैक्स पे करना चाहते हैं, तो उस केस में सेक्शन 74 की पेनल्टी 50% रह जाएगी। यू हैव टू पे टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट एंड 50% पेनल्टी विद इन 30 days of the order and the proceeding shall be deemed to be concluded। अब सर मैंने 20% के आगे डबल स्टार लगाया हुआ है। इन डबल स्टार का क्या मतलब है? ये डबल स्टार का मतलब ये है कि एससीएन आने के 30 दिन, एससीएन आने से पहले या एससीएन आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो रिड्यूस्ड बेनिफिट पेनल्टी का बेनिफिट दिया गया है 0% का, कि पेनल्टी आपकी 10% ना लग के 0%, वो आपको बेनिफिट सेल्फ असेस टैक्स या फिर जो टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया बट सरकार को नहीं पे करा 30 दिन के अंदर अंदर, उसमें आपको ये बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा, मतलब कि आपका उसमें पेनल्टी पूरी। अब हमने सर ये बात करी थी टाइमलाइंस टू इशू शोकोज नोटिस। अब एक नोटिफिकेशन आई बहुत ही रिसेंटली, नोटिफिकेशन नंबर 13/2022 13 of 2022 which was dated 5th of July 2022, wherein the last date of issuance of order under section 73 pertaining to the financial year 17-18, meaning thereby from July 17 to March 18, whatever the last date of issuance of order has been extended। ओरिजिनल टाइम पीरियड क्या था? अभी हमने बात किया सेक्शन 73 में 3 साल और सेक्शन 74 में 5 साल। एससीएन इशू करने के लिए 3 महीना एटलीस्ट पहले आपको जो है एससीएन इशू कर देना है, और सेक्शन 74 में 6 महीना पहले एटलीस्ट आपको इशू कर देना है। तो ओरिजिनल टाइम पीरियड सेक्शन 73 की क्या थी? क्योंकि 17-18 की एनुअल रिटर्न जीएसटी 990 की लास्ट डेट एक फेज्ड मैनर में 3, 5 और 7 फरवरी के लिए अलग अलग स्टेट्स के लिए, 3 फरवरी अलग स्टेट, 5 फरवरी अलग स्टेट्स और 7 फरवरी अलग स्टेट्स के लिए रखी गई। तो ऑर्डर इशू करने की जो लास्ट डेट ओरिजिनल टाइम पीरियड था, जो एक्सटेंड अगर ना होता तो क्या होता, वो होता 2, 4 या 6 फरवरी, और एससीएन इशू करने की लास्ट डेट 2, 4 या 6 नवंबर होती। तो आज सर हम सितंबर में खड़े हैं, अगर मान लीजिए टाइमलाइन एक्सटेंड नहीं होती तो विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स मैक्सिमम अगर नॉन फ्रॉड केसेस के एससीएन आने थे वो आ जाते, उसके बाद नहीं आ पाते, उसके फ्रॉड वाले केसेस आ पाते। ऑल्दो इन मैक्सिमम केसेस 99% केसेस डिपार्टमेंट जो है वो फ्रॉड को ही इन्वोक करता है, आप पे सेक्शन 74 ही लगाएगा। अब एक्सटेंडेड या न्यू टाइम पीरियड क्या है सेक्शन 73 का? अगर आपका टैक्स और आईटीसी का केस है तो 30 सितंबर 2023, 2, 4 और 6 फरवरी को 30 सितंबर 2023 को एक्सटेंड कर दिया गया, और एससीएन जो है 3 महीने पहले क्योंकि इशू करना है, तो लास्ट डेट एससीएन इशू करने की है 30 जून 2023। तो अब एक्सटेंडेड टाइमलाइन के हिसाब से जो 73 का नोटिस 17-18 का 30 जून 2023 वो है टाइम बार्ड हो जाएगा, वो या तो एक्सटेंडेड पीरियड में सेक्शन 74 में आएगा या फिर वो एससीएन नहीं आएगा। और अगर इरोनियस रिफंड का है तो एक पीरियड जो है 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022, 3 साल का पीरियड कैलकुलेट करने में आप ये पीरियड 2 साल के जो है आप एक्सक्लूड कर दीजिए, और आपको जो है एससीएन इशू करने की और ऑर्डर इशू करने की लास्ट डेट आपको कंप्यूट हो जाए। अब सर सेक्शन 73 और 74 के कुछ कॉमन रूल्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज, if you have already raised a demand for the main period, let's say for the period 17-18, 18-19, 19-20, if you have raised a demand for these 3 years and you have to raise the demand for 2021 for the subsequent period, then in that case a statement of demand SOD has to be furnished by the department on the SSC under section 73 only. The statement of demand cannot be furnished under section 74. अब सर आप पूछेंगे क्यों है ऐसा? सर ये इसलिए है ऐसा क्योंकि पुरानी रिजीम में इस पे बहुत सारी लिटिगेशन थी, जिसमें असेसीज का ये कहना होता था कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है 5 साल का, वो सिर्फ तभी इन्वोक हो सकता है जब फ्रॉड, सप्रेशन, विलफुल मिसस्टेटमेंट जैसे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होंगे एक केस में। अब सर 20 का मेरा एससीएन कर ही दिया, तो ऑलरेडी इस इशू पे डिमांड मैंने नहीं पे करी हुई है। लेट्स से कोई मैं एक्स कैटेगरी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता था जो मेरे हिसाब से एग्जाम थी, बट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि एक्स कैटेगरी ऑफ सर्विसेज जो है टैक्सेबल है। तो इन दैट केस जो मेरा ऑलरेडी एक 3 साल का कर दिया, तो आपको पता चल गया मैं एक्स कैटेगरी ऑफ सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं जिसपे मैं टैक्स नहीं पे कर रहा, तो ऑटोमेटिकली 2021 का सप्रेशन जो है एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। कोई फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट, इवेजन ऑफ टैक्सेस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए subsequent period demand notices can only be issued under section 73 without invoking extended period or larger period of limitation of 5 years.
क्योंकि उसमें नॉन फ्रॉड का ही केस बनता है। इसमें निजाम शुगर मिल्स और बहुत सारी जजमेंट्स हमारी पुराने रिजीम में एग्जिस्ट करती हैं। अब इन्होंने जीएसटी में एक बहुत अच्छा चीज करा, जो सेक्शन 74 में ये प्रोविजन ही डाल दिया कि अगर आपको सब्सिक्वेंट पीरियड का एससीएन देना है, सब्सिक्वेंट पीरियड का स्टेटमेंट ऑफ डिमांड देना है, तो सिर्फ सेक्शन 73 में होगा, सेक्शन 74 में वो हो ही नहीं सकता है। तो आपको 3 साल के अंदर अंदर या 2 साल 9 महीने के अंदर अंदर एससीएन उसका देना है। एक प्रोविजन ये भी है, फेक इनवॉइस का केस है और मेन पार्टी जिसने फेक इनवॉइसेस लिए या दिए उस पे केस बना और उनके जो भी पूरी चेन है उनको को नोटिस बनाया गया, उन पे प्रोसिक्यूशन की या पेनल्टी की प्रोसीडिंग इनिशिएट करी गई। तो इसमें ये कहना है इसमें ये कहना है सेक्शन 74 में कि अगर मेन नोटिस पे प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो, मान लीजिए वो टैक्स पे कर देता है या फिर वो केस जीत जाता है, तो सेक्शन 122 जो कि 21 तरीके की पेनल्टी लिस्ट करता है, हमने पुराने अपने सेशन में समझा सेक्शन 122 क्या कहता है, और सेक्शन 125 जो जनरल पेनल्टी प्रपोज करता है 25,000 तक की, नोटिस से भी वो प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएंगी। और अमेंडमेंट जो 1 जनवरी 2022 को आई, उससे पहले जो 129 की प्रोसीडिंग्स और 130 की प्रोसीडिंग्स, मतलब डिटेंशन की प्रोसीडिंग्स और कॉन्फिस्केशन की प्रोसीडिंग्स भी कंक्लूड हो जाती थी अगर मेन नोटिस पे खत्म हो गई तो को नोटिस से, लेकिन अब वो कंटिन्यू रहेंगी। तो अगर मान लीजिए आपका मेन नोटिस को बरी कर दिया गया है तो को नोटिस पे 122 और 125 की पेनल्टी ऑटोमेटिकली, लेकिन 129 और 130 की कन्फिस्केशन और डिटेंशन की प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू रहेंगी, उसको वो केस अपना लड़ना पड़ेगा। सप्रेशन डिफाइन कर दिया सर सेक्शन 74 में, जिसमें बोला गया नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन व्हिच अ टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर in the statement, return, report or any other document furnished under this act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for in writing by the proper officer। तो क्या होता था, डिपार्टमेंट हर चीज को सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स बोल देता था, तो उसके लिए जो है अब सेक्शन 74 में डिफाइन कर दिया गया स्पेसिफिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट सप्रेशन आपकी सप्रेशन की एलिगेशन लगाए तो आप इस डेफिनेशन को कोट कीजिए जो सेक्शन 74 में दी गई है, और आप बोलिए कि सर मेरा कोई भी नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, जो भी मेरे को रिपोर्ट्स रिटर्न्स फर्निश करनी थी, स्टेटमेंट फर्निश करनी थी, मैंने उसमें सारा डेटा शो कर रखा था, आपने जो डेटा मुझसे मांगा मैंने दिया, तो देयर इज नो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन द प्रेजेंट केस। अब हमने सर सेक्शन 73 समझा, सेक्शन 74 समझा। सेक्शन 75 में 73 और 74 के कुछ जनरल प्रोविजंस की बात करता है जो हम समझते हैं। अगर मान लीजिए आपका एससीएन सर्व करना या ऑर्डर को इशू करने की प्रोसीडिंग्स को स्टे करा गया है कोर्ट ने, तो 3 साल टाइम लिमिट है या फिर 2 साल 9 महीना और 4 साल 6 महीना की जो टाइमलाइंस है, उसमें से वो पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा जितना पीरियड आपका हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने। अगर मान लीजिए कोई एससीएन इशू हुआ सेक्शन 74 में और फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के चार्जेस प्रूव नहीं हुए, तो इन दैट केस आप जो है सेक्शन 73 में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपका सेक्शन 73 हट जाएगा और सेक्शन 73 में माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई शोकॉज नोटिस और डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं इसमें फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, इवेजन ऑफ टैक्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इन दैट केस 2 साल का टाइम लिमिट आपका बाढ़ हो जाएगा, मतलब आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी, और 3 साल का टाइम लिमिट आपका जो है एग्जिस्ट करेगा, 3 साल का पीरियड आपका एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर इशू होना है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ कोर्ट, तो उसकी टाइम लिमिट दी गई है कि 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट जो है डिपार्टमेंट के पास है कि उसको 2 साल के अंदर अंदर वो ऑर्डर पास करना है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, अगर रिटर्न रिक्वेस्ट आपने डाली है तो, या फिर कोई एडवर्स ऑर्डर डिपार्टमेंट लेने वाला है, तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई फेवरेबल ऑर्डर आना है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की जरूरत नहीं है। अगेंस्ट में ऑर्डर आना है, कोई डिपार्टमेंट को आपकी डिमांड कंफर्म करनी है, रिफंड रिजेक्ट करना है, आईटीसी इनएडमिसिबल होल्ड करना है, तो उस केस में उसको आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो रिप्लाई टू एससीएन फाइल करते हैं उसके बाद आपको हियरिंग मिलेगी, आप उसके एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं ड्यू टू एनी रीजन, और मैक्सिमम आपको जो है 3 एडजॉर्नमेंट डिपार्टमेंट देगा, 3 के बाद आपको एडजॉर्नमेंट नहीं। अब ये 2 चीजें जो है पहले लॉ में नहीं थी, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में 2 चीजें बहुत अच्छे से इनकलकेट की गई हैं, तो इसको अब लॉ में ही डाल दिया गया कि ऑर्डर जो है वो एक रीजन ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर होना चाहिए। इट शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर जो पूरा का पूरा डिटेल में आपका डिपार्टमेंट आपको देगा, ना कि सिर्फ 1 पेज का या 1 लाइन का ऑर्डर जो है होना चाहिए। दूसरा केस कहता है कि ऑर्डर कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड एससीएन। तो आपका अगर मान लीजिए एससीएन में एक्स सर्विसेज पर डिमांड बनाई, तो ऑर्डर वाई सर्विसेज पर डिमांड कंफर्म नहीं कर सकता, उसको एक्स सर्विसेज के दायरे में रह के, उस बाउंड्री में ही रह के
SCN उसको एडजुडिकेशन जो है करना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड ऑर्डर नहीं जा सकता। इस पे क्या है कि पुरानी रिजीम में बहुत सारी जजमेंट्स थी, जब डिपार्टमेंट क्या करता था कि SCN में जो एलिगेशंस लगाई उसके बियॉन्ड जाके डिमांड कंफर्म करता था, मतलब नई नई एलिगेशंस डिपार्टमेंट जो है ले आता था। या जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि पुरानी रिजीम में, सर्विस टैक्स के रिजीम में, प्री नेगेटिव लिस्ट में कुछ सर्विसेज नोटिफाइड थी, तो अगर मान लीजिए एक्स कैटेगरी ऑफ सर्विस में डिमांड बनी और डिपार्टमेंट को लगा कल को वो केस हार रहा है, वो एक्स में नहीं ये बनती है, ये तो वाई में बनती है, तो इसमें जो है डिमांड हमेशा ड्रॉप की जाती थी। डिपार्टमेंट बोलता था कि ऑर्डर जो है it has traveled beyond SCN in confirming the demand under Y category of service, whereas in the SCN X category demand was proposed under X category of services. तो उसी के लिए सेक्शन 75 में लिख दिया गया है कि SCN ऑर्डर कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड SCN। फिर जैसा कि मैंने अभी बात करी कि ऑर्डर अगर मान लीजिए 3 साल या 5 साल में नहीं फर्निश हुआ, तो माना जाएगा कि एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो चुकी है, आपका SCN कंक्लूड हो चुका है, आपके अगेंस्ट में कोई डिमांड नहीं बनती है। अगर मान लीजिए आपका कोई एक ऐसा इशू है, जैसे एग्जांपल है कि एक्स कैटेगरी ऑफ सर्विसेज पे टैक्स बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो किस रेट पे बनेगा, दिस इज द इशू अंडर कंसिडरेशन, और ये इशू ऑलरेडी हाई कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में, लेट से अभी GST का ट्राइब्यूनल अथॉरिटी की बात कर लेते हैं, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में कमिश्नर अपील्स ने ऑलरेडी बोल दिया कि एक्स कैटेगरी ऑफ सर्विस पे टैक्स नहीं लगेगा, और डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में चैलेंज डाल रखा है या ट्राइब्यूनल, तो उस केस में जब तक जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ जिसमें बोला गया कि एक्स कैटेगरी ऑफ सर्विस पे टैक्स नहीं लगेगा, से लेके जिस दिन तक वो ऑर्डर पास होगा हायर फोरम का जो बोलेगा कि लगेगा या नहीं लगेगा, वो पीरियड जो है 3 साल या 5 साल के लिए एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उस पीरियड को नहीं काउंट किया जाएगा। इसके लिए पुराने रिजीम में, सर्विस टैक्स रिजीम में कॉल बुक का प्रोविजन हुआ करता था। सर्कुलर एक आया हुआ था जो ये बोलता था कि अगर डिपार्टमेंट ने सेम इशू पे अपील फाइल कर रखी है तो केस जो है कॉल बुक में डाल दिया जाए, मतलब उसको अबेंस में रखा जाए, और जब वो डिपार्टमेंट की अपील कंक्लूड हो जाएगी तब उस केस को उठा के वापस से एडजुडिकेट किया जाएगा। फिर एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज डाला गया। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज मतलब नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग करके डाला गया कि अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स। सेल्फ असेस टैक्स का मतलब क्या हुआ कि जो GSTR 1 में दिखा दिया लेकिन 3B में नहीं पे करा, मतलब असेसी ने खुद ही बोल दिया कि मेरी 100 रुपए की लाइबिलिटी बनती है लेकिन 3B में अगर और 20 रुपए पे नहीं करा, तो उस केस में आपका 73, 74 में केस फॉल नहीं करता है, डायरेक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स होंगी सेक्शन 79 में। मतलब वो टैक्स तो आप ऑलरेडी खुद से ही बता चुके हो कि मुझे ये पे करना है, उस केस में SCN इशू करना, ऑर्डर पास करना नहीं होगा, डायरेक्ट आप पे रिकवरी मैकेनिज्म जो है इनिशिएट किया जाएगा, आपसे वो टैक्स की रिकवरी। और अगर मान लीजिए 73, 74 में पेनल्टी आपकी बना दी गई है, तो किसी और एक्ट में या सेम ऑफेंस के लिए, सेम एक्ट के लिए इस पूरे GST एक्ट में किसी और सेक्शन में पेनल्टी आपकी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सेक्शन 73 में भी पेनल्टी लगा दी और सेक्शन 125 में भी जनरल पेनल्टी आप पे लगाई जा रही है। अब जैसा मैंने बात करी आपसे कि सेक्शन 74 बात करता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, तो सेक्शन 74 में जो 5 साल का एक्सटेंडेड पीरियड, लार्जर पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, उस पर पुरानी रिजीम में कुछ लैंडमार्क डिसीजन है जो मैंने कोट करे। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का कैलकाटा हाई कोर्ट का, पंजाब लैमिनेट्स का सुप्रीम कोर्ट का, यूनिवर्स टेक्सटाइल्स का सुप्रीम कोर्ट का, आनंद निशी कावा कंपनी लिमिटेड का सुप्रीम कोर्ट का, एंड देन चेम्फा ड्रग्स एंड लिनिमेंट्स ऑफ अनदर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, wherein it has been held that where and in what circumstances extended period of limitation can be invoked, that is an SSC will be held to be under fraud, malafide intention or acted in a way where there is an ingredient of willful misstatement or suppression of facts. Along with this there are some other judgments wherein it has been held that अब आप सर ये बहुत देखा शो कोज नोटिस आता है ना, तो ये एलिगेशन जरूर होती है कि अगर हम ऑडिट ना करते, अगर हम इन्वेस्टिगेशन ना करते, अगर हम एंटी इवेजन की प्रोसीडिंग्स ना करते, तो आपका ये जो है इशू जिस पे टैक्स की नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट है एज पर द डिपार्टमेंट, ये कभी अनर्थ ही नहीं होती, मतलब ये कभी डिस्कवर ही नहीं होती। तो इस पे छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की दिल्ली ट्राइब्यूनल की जजमेंट है, और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कैलकाटा हाईकोर्ट की जजमेंट है जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखी, जो ये दोनों कहती है कि सिर्फ ये कहना कि अगर हम इंक्वायरी नहीं करते, हम ऑडिट नहीं करते, तो ये फैक्ट का हमें पता ही नहीं चलता कि आपने नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर रखा है, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव मैलाफाइड इंटेंट ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर। देन देयर आर सर्टेन जजमेंट विच सेज कि अगर आपने फाइनेंशियल, जैसे एग्जांपल मैं इसका लेता हूं पहले, कि मान लीजिए आपको एक एक्स कैटेगरी ऑफ सर्विसेज से 10 लाख रुपए का रेवेन्यू आया फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, अंडर दिस बोनाफाइड इंप्रेशन
कि इस पे टैक्स बनता ही नहीं है, आपने इस पे टैक्स नहीं पे। लेकिन बाद में सरकार ने आके बोला कि नहीं, इस पे तो टैक्स बनता है, इस पे तो आपकी लायबिलिटी टू पे टैक्सेस बनता। तो इन दैट केस आपका जो है there are certain judgments which says that there is no suppression of facts when receipts have been properly shown in financial statements or returns filed under the act. The judgments are Central India Engineering Company, then Khandwala Securities Private Limited, judgment of Mumbai Tribunal, and another judgment of Mumbai Tribunal Valencia Construction Private Limited. अब सर एक सेक्शन 76 की हम जरूर बात करेंगे, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने आपसे लास्ट ही सेशन में डिस्कस किया था कि वन ऑफ द ग्रेव ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है आप पे इनवाइट होता है कि आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया लेकिन सरकार को पे नहीं करा। मतलब आपने 100 रुपए की सर्विसेज दी, 18 रुपए का टैक्स कलेक्ट कर लिया लेकिन सरकार को पे नहीं करा, आप अपनी जेब में रख के बैठ गए, आपने सरकार को दिया ही नहीं। तो उस पर एक सेक्शन है जो ये बोलता है कि अगर आपने अमाउंट कलेक्ट कर लिया लेकिन सरकार को नहीं दिया, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट whether it is exempt or taxable, since you have collected the tax from the service recipient, you have to pay it to the government. Then if it is not paid, the SCN has to be served with interest and 100% penalty. टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर जो है वो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस है। इस केस में 73, 74 वाला वो नहीं लगेगा, 5 साल और वो सब सारी चीजें। इसमें आप कितने भी टाइम लिमिट में एससीएन जो है सर्व कर सकते हैं। एससीएन सर्व करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, इवन आफ्टर 3 या 5 इयर्स आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने कलेक्ट कर लिया और पे नहीं करा। और आप इस केस में 100% आप पे पेनल्टी लगेगी। एससीएन इशू करने के 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है ऑर्डर पास करना है। तो सर ये पूरा टॉपिक था हमारा डिमांड एंड रिकवरी, डिमांड्स का। अब हमने जो 73, 74 वगैरह के प्रोविजंस पढ़े, हम उनको रेलेवेंट फॉर्म्स के साथ पढ़ते हैं कि कौन से फॉर्म में एससीएन आएगा, किस फॉर्म में हमें रिप्लाई करना है और कैसे हो जाता है प्री एससीएन इंटीमेशन नोटिस की। तो प्री एससीएन इंटीमेशन नोटिस जो है वो आपके पास आएगा DRC 1A में। प्री एससीएन इंटीमेशन नोटिस होता है जिसमें डिपार्टमेंट ये बोलता है कि मेरे हिसाब से आपकी इतने रुपए की लायबिलिटी बनती है, आई एम गोइंग टू इशू शो कॉज नोटिस अपॉन यू, therefore before issuing show cause notice I am giving you an opportunity to either pay the taxes or give me sufficient explanation as to why this tax demand does not sustain. अब इसमें 2 सिनेरियो होंगे, या तो आप एससीएन इंटीमेशन नोटिस को टैक्स पे कर दोगे या फिर आप नहीं पे करोगे। तो अगर मान लीजिए आपने टैक्स पे कर दिया DRC 3 के थ्रू, या फिर आपने टैक्स पे नहीं करा, in both the scenarios you have to file a reply in part B of form DRC 1A, जिसमें आप बोलेंगे कि either you accept with the dues mentioned in pre-SCN intimation notice or you do not accept based on the submissions that you will take in part B of DRC 1A. अब आपने टैक्स पे नहीं करा तो आप पे जो है एक शो कॉज नोटिस इशू होएगा। प्री एससीएन इंटीमेशन नोटिस के प्रोविजंस 9 अक्टूबर 2019 को लाए गए थे, जिसमें शुरू में प्री एससीएन इंटीमेशन 9 अक्टूबर 2019 से लेके 14 अक्टूबर 2020 तक, मतलब रफली 1 साल के पीरियड के लिए प्री एससीएन इंटीमेशन नोटिस जो है मैंडेटरी था। आपको शो कॉज नोटिस बिना प्री एससीएन इंटीमेशन नोटिस के नहीं आ सकता था। द वर्ड्स दैट वर यूज्ड इन सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 73 वर of rule 142 were shall. तो pre SCN intimation notice by usage of the word shall mandatory था। However 15 अक्टूबर 2020 से इसको वॉलेंट्री कर दिया गया, मतलब डिपार्टमेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन नाउ टू इशू प्री एससीएन कंसल्टेशन नोटिस और प्री एससीएन इंटीमेशन नोटिस। अब आपको डायरेक्टली एससीएन भी आ सकता है, और अगर चाहे तो डिपार्टमेंट आपको DRC 1A में प्री एससीएन का इंटीमेशन नोटिस भी दे सकता है। अब एससीएन इशू होएगा तो आप उसका समरी जो है डिपार्टमेंट को इशू करनी है DRC 1 में, और अगर स्टेटमेंट ऑफ डिमांड इशू मतलब की सब्सिक्वेंट पीरियड का शो कॉज नोटिस इशू होएगा, जो अभी हमने डिस्कस किया 73 में हो सकता है, 74 में नहीं हो सकता है, उसकी समरी अपलोड होगी DRC 2 में। जो है समरी DRC 1 में आ गई। अब आपके पास 3 केसेस होंगे, या तो आप उसको टैक्स को पे कर देंगे विद इन 30 डेज, या आप टैक्स को पे नहीं करेंगे विद इन 30 डेज आफ्टर 30 डेज, या फिर आप उसको लिटिगेट करेंगे। तो क्या 3 सिनेरियोज हो? टैक्स पेड विद इन 30 डेज, टैक्स पेड आफ्टर 30 डेज, टैक्स नॉट पेड, दैट मींस यू विश टू लिटिगेट द ड्यूज फर्दर। तो अगर आपने टैक्स पे कर दिया 30 दिन के अंदर अंदर, तो रिड्यूस पेनल्टी आपको मिल जाएगी, जो अभी हमने डिस्कस किया कि सेक्शन 73 में 0% और सेक्शन 74 में 25% रह जाएगी। वो टैक्स आपको पे करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड रिड्यूस पेनल्टी इन DRC 3
और आपकी प्रोसीडिंग्स ऑटोमेटिकली कंक्लूडेड मानी जाएगी डीआरसी 5 में। तो कोई ऑर्डर नहीं डालना, कोई और रिप्लाई नहीं फाइल करना, आपका डीआरसी 5 इशू होएगा जिसमें डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो गई है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 30 दिन के बाद टैक्स पे करते हैं या आप टैक्स को पे ही नहीं करते हैं, लिटिगेट करते हैं, तो उस केस में आपको एक रिप्लाई फाइल करना होगा डीआरसी 6 में और आपका एक ऑर्डर पास होगा डीआरसी 7। अब अगर मान लीजिए आप टैक्स 30 दिन के अंदर अंदर पे नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली यू वांट टू लिटिगेट ईदर द पेनल्टी, इवन द रिड्यूस्ड पेनल्टी, और यू वांट टू लिटिगेट एनी अदर contents of the show cause notice. Then in that case you have to file the reply in DRC 6 and an adjudication order will be passed in DRC 7. अगर आपका ऑर्डर रेक्टिफाई होगा, मान लीजिए DRC 7 पास हुआ एंड इट हैज टू बी रेक्टिफाइड और विड्रॉन, तो वो DRC 8 में होगा और DRC 7 के नोटिस फॉर रिकवरी भी है। तो DRC 7 में जो ऑर्डर में आपकी डिमांड या तो 100 रुपए की पूरी कंफर्म कर दी या पूरी 100 रुपए की ड्रॉप कर दी या पार्टली कंफर्म कर दी, पार्टली ड्रॉप कर दी, तो उसको नोटिस फॉर रिकवरी माना जाएगा क्योंकि डिमांड अब आपके अगेंस्ट में स्टैंड कर गई है, अब आपके अगेंस्ट में कंफर्म हो गई है, तो उसको नोटिस फॉर रिकवरी माना जाएगा। आफ्टर द इशुएंस ऑफ DRC 7 डिपार्टमेंट में स्टार्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स, डिपार्टमेंट में सीक द टैक्स दैट हैज बीन कंफर्म्ड अगेंस्ट यू। अब सर इस पे एक जजमेंट है NKAS सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, झारखंड हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें SCN इशुएंस की 3 कमियां निकाली गई। फॉर्मेट को SCN इशू करने का फॉर्मेट है DRC 1, उसको आपने सिंपली एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दिया है, इररिलेवेंट चीजें उसको स्ट्राइक आउट भी नहीं करा है। तो अगर मान लीजिए फॉर्मेट में लिखा है SCN टू बी इशूड अंडर 73 74, तो आपने 73 में करना है तो 73 को टिक मार के 74 काटा भी नहीं है, आपने दोनों में इशू कर दिया। तो ऐसे ही उसने बोला कि आपने फॉर्मेट को स्ट्राइक आउट नहीं करा, रेलेवेंट पोर्शंस को। तो बात की गई कि अगर आपको DRC 1 में एक समरी इशू करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिटेल्ड SCN नहीं देना है, आपको डिटेल्ड SCN फिर भी देना है, सिर्फ समरी से सामने वाले है कि आप उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लेना चाहते हैं, किस बेसिस पे आप डिमांड जो है प्रपोज कर रहे हैं। और तीसरी बात की गई बियॉन्ड SCN की, जिसमें बोला गया है कि अगर SCN में ग्राउंड्स नहीं स्पेसिफाई करते हैं, अगर SCN आपका समरी SCN इशू हो गया DRC 1 में एक लाइन का SCN, तो आप ऑर्डर में एक्स्ट्रा ग्राउंड नहीं ले सकते। यू कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड SCN, यू हैव टू बी कन्फाइंड विद इन द बाउंड्रीज क्रिएटेड बाय द SCN। तो अगर आपकी बाउंड्री ही एक लाइन की है तो आप ऑर्डर में उस एक लाइन के बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था SCN का, जिसमें हमने फॉर्म DRC 1 से लेके 8 तक डिस्कस किया, 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर हमने डिस्कस किया कितने टाइम लिमिट में क्या क्या होगा, हमने पेनल्टीज डिस्कस करे। अब हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड टॉपिक फॉर द डे विच इज अपील्स। देयर आर 10-12 सेक्शंस इन अपील्स। सेक्शन 107 जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का है, 109, 110 मैंने जैसा आपसे बात करी स्टार्टिंग ऑफ प्रेजेंटेशन में, बहुत ही मैकेनिज्म को लेके सेक्शन है जो कि अपने को बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है आज की स्टेज में डिस्कस करने का, और ट्राइब्यूनल अभी बना भी नहीं है तो कोई बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 111 अगेन प्रोसीजरल सेक्शन। सेक्शन 112 और 113 का जो इंपॉर्टेंट ग्लिम्स है वो मैं आपको दूंगा। सेक्शन 114 अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 115 is a very important section. I'll discuss this with you. Section 116 again a very miscellaneous section. 117, 118 I'm going to discuss in brief. 119 miscellaneous section we are not going to discuss. 120 and 121 we are going to discuss for the day. Section 107 क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए जो हमने लिटिगेशन फ्लो की सबसे स्टार्टिंग में बात करी, लिटिगेशन फ्लो में अब हम आ चुके हैं डिमांड के बियॉन्ड। अब हम फर्स्ट अपीलेट पे आ गए हैं, जो मैंने ग्रीन कलर से आपको बॉक्सेस दिखाए। अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में आपको ऑर्डर इन ओरिजिनल के अगेंस्ट में अपील करना है। तो अगर असेसी को अपील समय आपको दिया गया, डिपार्टमेंट को अपील करना है तो 6 महीने का समय दिया गया है, और मैक्सिमम कॉन्डोनेबल पीरियड फॉर बोथ द असेसी एज वेल एज द डिपार्टमेंट इज 1 मंथ। मतलब असेसी 3+1 मंथ में अपील डाल सकता है मैक्सिमम, और डिपार्टमेंट 6+1 मंथ में अपील डाल सकता है मैक्सिमम। अगर मान लीजिए आप कॉन्डोनेबल पीरियड में 3 महीने के बियॉन्ड अपील डाल रहे हैं तो आपको एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है साथ में, जिसमें आपको रीजंस बताने पड़ते हैं कि क्यों मैं 3 महीने में अपील फाइल नहीं कर पाया, क्यों मेरे को 3 महीने के बियॉन्ड जाना पड़ा। अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए मैं 4 महीने के बियॉन्ड अपील फाइल, तो उस केस में पुराने रिजीम में जजमेंट है वीर सिंह एंटरप्राइजेस का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो ये बोलता है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बिकॉज इट इज अ क्रिएशन ऑफ द स्टैट्यूट एंड स्टैट्यूट इटसेल्फ सेज द मैक्सिमम कॉन्डोनेबल पीरियड इज 1 month. Therefore, first appellate authority cannot condone the delay beyond a period of 1 month. That is,
अगर 4 महीने के बियॉन्ड आप कोई अपील फाइल करते हैं तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि वो उसको कंडोन कर सकती है। हाउएवर सिंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्रिएशन स्टैट्यूट के नहीं है, दे कैन गो बियॉन्ड द लॉ ऑल्सो। तो अगर बहुत सफिशिएंट रीजन आपके पास है उसको 4 महीने में ना फाइल करने का, तो आप हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और डिस्क्रिशन ऑफ द हाई कोर्ट पे है कि अगर वो चाहेगा तो आपका कॉन्डोनेशन अलाउ कर देगा और रिमांड बैक कर देगा अपीलेट अथॉरिटी को कि आप इसका 4 महीने के बियॉन्ड भी अपील सुन सकते हैं। अब बात आती है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अपील डालने के लिए मुझे कुछ अमाउंट प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा क्या। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर एससीएन के रिप्लाई में तो हमने प्री डिपॉजिट नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, उसका इंटेंट समझिए सर। एससीएन में सिर्फ डिमांड अभी आपकी प्रपोज हुई है, आपके अगेंस्ट में कोई डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन जब ऑर्डर में आफ्टर कैरिंग आउट द नेसेसरी वेरिफिकेशन एंड एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स once the order has been pronounced then the demand has been confirmed against you. once the demand has been confirmed, अब डिपार्टमेंट कहेगा मैं रिकवरी करने आ रहा हूं, तो डिपार्टमेंट रिकवरी करने आएगा उसको स्टे लेने के लिए कि वो रिकवरी ना करे। अगर 100 रुपए की डिमांड कंफर्म हुई है वो आपसे 100 रुपए ना ले जाए, इसलिए एक मैंडेटरी प्री डिपॉजिट का प्रोविजन जो है लॉ में डाला गया कि आप दोगे, फिर अपील में जीत गए तो रिफंड मांगना पड़ेगा। तो उसके लिए बोला गया कि जो अमाउंट आप एडमिट कर रहे हो, मान लीजिए 100 रुपए में से आप कह रहे हो 20 रुपए तो सर मेरा बनता है, मैं मान गया, तो 20 रुपए करना पड़ेगा और बाकी बचा 80 रुपए का 10%, मतलब कि 8 रुपए आपको जो है इन एडिशन टू 20 रुपीज दैट यू हैव ऑलरेडी पेड, तो 28 डिपॉजिट पे करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग दी अपील। 10% की जो अमाउंट है वो मैक्सिमम 25 करोड़ की है, तो अगर मान लीजिए 250 कोई केस है तो 25 करोड़ से ऊपर का जो है प्री डिपॉजिट नहीं हो सकता है आपका। अगर 20 करोड़ बनता है तो आपको 25 करोड़ का ही प्री डिपॉजिट कराना है। अगर 129 का ऑर्डर है, मतलब कि ईवे बिल के टाइम पे कोई डिटेंशन का ऑर्डर है, तो पेनल्टी क्योंकि उसमें 200% जैसे कि लगती है, तो 200% पेनल्टी का जो भी जितनी पेनल्टी लगी है उसका 25% आपको पे करके मैंडेटरी प्री डिपॉजिट केस अपना अपील में एडमिट कराना पड़ेगा। अब सर जैसा कि हमने देखा सेक्शन 73-74 में देयर वाज अ टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर। सिमिलरली अंडर सेक्शन 107 देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ अपीलेट ऑर्डर। However, the time limit is only recommendatory in nature. It is accompanied with the word wherever it is possible to do so. तो इसलिए ये voluntary है, ये mandatory नहीं है। voluntary timeline दी गई है 1 year from filing of appeal. However, if in your case there is an inordinate delay, मतलब unexplainable delay है 1 साल के beyond, तो आप हाई कोर्ट में अपील डाल के, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल के आप इसको अपील को अपना फेवर में डिसमिस करा सकते हैं कि मेरी अपील का ऑर्डर क्योंकि 1 साल में नहीं पास हुआ और कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। जैसे एग्जांपल है किसी अपीलेट अथॉरिटी के पास कोई पेंडेंसी भी नहीं है बहुत ज्यादा और फिर भी उसने ऑर्डर आपका पास नहीं करा, तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच करके आप अपनी अपील एडमिट करा सकते हैं, अपनी अपील जल्दी या तो हियर करा सकते हैं या अपनी अपील फेवर में डिस्पोज ऑफ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑन एनी ऑर्डर। सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 में क्लियरली लिखा हुआ है कि अपील इस सेक्शन में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को किसी भी डिसीजन या किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए एडजुडिकेशन ऑर्डर के अलावा भी कोई डिसीजन असेसिंग डिपार्टमेंट ने लिया, जैसे एग्जांपल है आपके पास एक प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर आया या कोई भी ऑर्डर आपके पास, कोई भी डिसीजन आपके पास आया जो सेक्शन 73-74 के अलावा कोई ऑर्डर आपको पास हुआ है, कोई डिसीजन आपको पास हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट में सेक्शन 107 में 3 महीने के अंदर अपील कर सकते हैं। अगेन स्पीकिंग एंड रीजन ऑर्डर शुड बी पास्ड। Appellate order cannot travel beyond adjudicating order and maximum of 3 adjournments can be granted. Now this is a new provision that has been inserted in section 107 regime से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत बार ऐसा होता था कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसने ऑर्डर इन ओरिजिनल पास किया उसको रिमांड बैक कर देती थी कि आपने इसको गलत स्टडी करा, आपने इस केस को गलत वेरीफाई करा, आप इसको फ्रेश वेरीफाई करिए और फिर से एक फ्रेश ऑर्डर पास करिए। वो पावर जो है अपीलेट अथॉरिटी से सेक्शन 107 में छीन ली गई है क्योंकि इट वाज अगेन सब्जेक्ट टू वेरियस litigations across the tribunal और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट wherein assessees used to contend कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को खुद को वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी why they have remanded the matter back to original adjudicating authority। तो उसके लिए प्रोविजन ला दिया गया है सेक्शन 107 में जिसमें बोला गया है कि आप फ्रेश ऑर्डर के लिए ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिमांड बैक नहीं कर सकते, आपको खुद को वेरिफिकेशन करके ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अब इस पूरे का प्रोसीजर मतलब अभी हमने टाइमलाइन समझी, अब हम इसको फॉर्म्स के साथ समझते हैं।
कोई भी अपील जो है वो APL 01 में फाइल होगी। APL 01 में फाइल होने के बाद एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू होगा। अगर आप ऑनलाइन फाइल करते हैं तो इमीडिएटली एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आपको जनरेट हो जाता है। आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट होने के 7 दिन के अंदर अंदर सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की देनी है। अगर आपने दे दी तो आपका जो है, जिस दिन आपने ऑनलाइन अपील फाइल करी थी, जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू हुआ था, उस दिन मानी जाएगी डेट ऑफ फाइलिंग अपील है। लेकिन अगर आप 7 दिन में नहीं दे पाए तो उस केस में डेट ऑफ फाइलिंग अपील मानी जाएगी जिस दिन आपने सर्टिफाइड कॉपी मैनुअल फॉर्म में, हार्ड कॉपी फॉर्म में सबमिट करी। तो ये एक चीज है जो राइट साइड पे हमने लिखा कि इफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर इज नॉट सबमिटेड विद इन 7 days देन द डेट ऑफ फाइलिंग अपील विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑन विच सर्टिफाइड कॉपी ऑफ order has been filed with the appellate authority. This is a very important thing that has to be noted. Many a times I have seen that clients usually file the appeal online and they forget to file the certified copy of order within 7 days. Then in that case, there may be instance in future wherein appellate authority can hold your appeal as time barred, because let's say after filing appeal online, after 2 months you file the certified copy of order in hard copy, then in that case, that date of filing of certified copy will be considered as the date of filing appeal, by which time the appeal will be considered as time barred and your appeal will not be entertained. अब मान लीजिए आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाएगा APL 02 में, आपने 7 दिन में दे दिया या 7 दिन के बाद दिया लेकिन विद इन टाइम लिमिट दिया, तो आपको एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट डिपार्टमेंट को इशू करना है APL 02 में। APL 02 में एक्नॉलेजमेंट इशू होते ही अपील मानी जाएगी कि इट हैज बीन फाइल्ड, और अपीलेट ऑर्डर जो है वो APL 04 में उसकी समरी इशू हो। अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल APL 03 में फाइल होगी और डिपार्टमेंट को भी सेम वे में सर्टिफाइड कॉपी 7 दिन के अंदर अंदर फर्निश करनी है अथॉरिटी को, अदरवाइज उसका भी वही डेट मानी जाएगी जिस डेट पे उसने सर्टिफाइड कॉपी फर्निश करी। प्रोसीजर की तो हमने APL 01 समझा जो अपील फाइल करने का फॉर्म है, APL 02 समझा जो कि एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म है, APL 03 समझा जो डिपार्टमेंट अपील का फॉर्म है, और APL 04 समझा जो अपीलेट ऑर्डर का फॉर्म है। Then comes the appeal to appellate tribunal. Since the appellate tribunal has not been formed yet, there is no need to go into the detail of this particular section. However, we are going to discuss the very overview of this section since we are on the verge. अभी भी recent council meeting में एक group बनाया गया tribunal formation के लिए, तो we are expecting कि soon there will be a tribunal where we can file the appeals. तो उसके related जो provision circulars हमारे पास available है, हम उसको discuss करते हैं। असेसी की अपील फाइल करने का सेम सेक्शन 107 में भी 3 महीने थे, 112 में भी 3 महीने, मतलब आपको फर्स्ट अपीलेट में भी 3 महीने में फाइल करनी है और सेकंड अपीलेट अथॉरिटी में भी 3 महीने में फाइल करनी है। डिपार्टमेंट को 6 महीने में फाइल करनी है। अगर अपील डिपार्टमेंट ने फाइल करी है तो आपको क्रॉस ऑब्जेक्शन अगर फाइल करने, आपका नीचे अथॉरिटी पे ऑर्डर फेवर में आया और डिपार्टमेंट ने अपील कर दी और आप डिपार्टमेंट की अपील के अगेंस्ट में कोई सबमिशन देना चाहते हो कि नहीं, नीचे वाला ऑर्डर सही ऑर्डर पास हुआ था, मेरी डिमांड सही ड्रॉप हुई थी, तो आपके पास 45 डेज का जो है टाइम लिमिट है। मैक्सिमम कॉन्डोनेबल पीरियड ट्राइब्यूनल के पास कुछ नहीं होता। ट्राइब्यूनल इज अ जुडिशियल अथॉरिटी, ये ट्राइब्यूनल के डिस्क्रिशन पे होता है कि ट्राइब्यूनल पीरियड जो है आपको कर, पुराने रिजीम की बात की जाए तो 5-5 साल का पीरियड भी जो है कॉन्डोन ट्राइब्यूनल ने किया है। हाउएवर it is subject to certain cost or certain sufficient grounds that has been explained by the assessees for the delay in filing appeal. सेक्शन 107 में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में जो प्री डिपॉजिट की अमाउंट थी वो 100% ऑफ अमाउंट एडमिटेड और 10% ऑफ द टैक्स थी। यहाँ पे 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट है, वहां पे 10% थी, यहाँ 20% है। ये 20% जो है वो 10% के एडिशन में कि 100 रुपए की डिमांड कंफर्म हुई है, तो आपको फर्स्ट अपील में 10 रुपए जमा कराना है और सेकंड अपील में आपको 20, टोटल आपका 30 रुपए जमा हो जाएगा सेकंड अपील तक। और जो 20% है दैट इज सब्जेक्ट टू 50 करोड़ रुपीस। तो मैक्सिमम आपका प्री डिपॉजिट सेकंड स्टेज पे 50 करोड़ का हो सकता है, फर्स्ट स्टेज पे आपका जो है 25 करोड़ का हो सकता है, तो प्री डिपॉजिट नहीं हो सकता। अपीलेट ट्राइब्यूनल का जो टाइम पीरियड है वो अगेन इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज वॉलंटरी एंड इट इज 1 year फ्रॉम फाइलिंग ऑफ अपील। अगर 50,000 रुपए से कम का केस है तो ट्राइब्यूनल की डिस्क्रिशन है, ट्राइब्यूनल मे रिफ्यूज टू एडमिट अपील। हाउएवर if it feels the appeal has to be entertained, it can entertain. ट्राइब्यूनल के पास पावर है रिमांड बैक करने की, क्योंकि ट्राइब्यूनल एक कोर्ट है, ट्राइब्यूनल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, कंप्लीट जुडिशियल अथॉरिटी है। तो ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए रिमांड बैक कर सकता है। ट्राइब्यूनल मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट दे सकता है। ये एक नया प्रोविजन है जो इस लॉ में ट्राइब्यूनल की जो कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल सीस्टैट है हमारा, वो 3 से भी कहीं ज्यादा
छह 7 7 8 8 एडजॉर्नमेंट्स भी दे देता है अगर सफिशिएंट रीजन हो एडजॉर्नमेंट मांगने का तो। लेकिन जीएसटी में प्रोविजन डाल दिया गया कि मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट ट्राइब्यूनल जो है दे सकता है फॉर स्पीडी डिसबर्सल ऑफ द केसेस। अगर कोई एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है अपीलेट ट्राइब्यूनल के खुद के ऑर्डर में, तो इट कैन बी रेक्टिफाइड विद इन 3 months either suo moto or an application by the taxpayer or the department। अब क्वेश्चन आएगा, सर ट्राइब्यूनल तो बना ही नहीं, अगर मान लीजिए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? तो उसके लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। या तो आप ट्राइब्यूनल बनने का वेट करिए, आपका टाइम लिमिट है वो एज पर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नंबर 9 ऑफ 2019, 3 दिसंबर 2019 को ये ऑर्डर पास किया सीबीआईसी ने। वो ये बोलता है कि आपकी जो 3 महीने की टाइम लिमिट है वो स्टार्ट होगी, अगर मान लीजिए कोई ऐसे केसेस हैं जो आज पास हो गए हैं, वो स्टार्ट होगी जिस दिन प्रेसिडेंट जो है अपने ऑफिस में एंटर कर जाएंगे, मतलब कि ट्राइब्यूनल फुली फंक्शनल हो जाएगा। उस दिन से 3 महीने में आप जो है अपील फाइल। तो इसमें मेरा आपसे एक सजेशन है, कोई अपीलेट ऑर्डर पास हुआ और वो अगेंस्ट में पास हुआ है और आप हाई कोर्ट में ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन और आप ट्राइब्यूनल बनने की वेट करना चाहते हैं, तो यू जस्ट राइट अ लेटर इमीडिएटली विद द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर that I have to file an appeal against this particular appellate order before the tribunal as and when it will be constituted, and therefore it should not be presumed that I have accepted this order, and all the recovery proceedings should be stayed, should be kept in abeyance, and I'll pursue this case before the tribunal। ऐसे करके आपको एक लेटर जो है इमीडिएटली फाइल कर देना चाहिए। अब महाराष्ट्र ने सर एक सर्कुलर निकाला 90 ऑफ 2020, 26 मई 2020 का डेटेड है, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर के अगेंस्ट में चैलेंज करना है ट्राइब्यूनल के पास, तो एक अनेक्शर 1 करके डिक्लेरेशन दी गई, जिस 15 दिन के अंदर आपको ये फाइल करना है। ये सिर्फ महाराष्ट्र का है और किसी गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नहीं है, किसी और स्टेट गवर्नमेंट का भी नहीं है। तो महाराष्ट्र में अंदर आपको जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को सबमिट करना है। अगर नहीं करोगे तो आप पे रिकवरी प्रोसीडिंग्स हम इनिशिएट कर देंगे, ये मानते हुए कि आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में नहीं करना चाहते हो एंड यू आर एक्सेप्टिंग दिस अपीलेट ऑर्डर। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई ऐसा केस है जो 15 दिन के बियॉन्ड भी फाइल हुआ है, तो भी वो कंटेस्टेबल है, उसमें रिकवरी प्रोसीडिंग्स हम रुकवा सकते हैं, बिकॉज not forming the tribunal is a major lapse on the part of government। तो हम इसको बहुत ज्यादा मैंडेटरी नेचर नहीं है, लेकिन अगर अब कोई ऑर्डर पास होने वाला है, इट इज एडवाइजेबल कि आप इस सर्कुलर को फॉलो करें और आप 15 दिन के अंदर एक एनेक्शर 1 में डिक्लेरेशन फाइल कर दें। केस लॉज हैं उन असेसीज के लिए जो ये बोलते हैं कि हम ट्राइब्यूनल हमने 5 करोड़ का रिफंड मांगा हुआ है, रिफंड रिजेक्ट हो गया, हमने रजिस्ट्रेशन हमारा कैंसिल हो गया, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने भी कैंसिल कर दिया, मैं रजिस्ट्रेशन मेरा बंद रहेगा या मेरा रिफंड होल्ड रहेगा, तो मेरे को तो बहुत नुकसान होगा ट्राइब्यूनल बनने तक। तो उनके लिए ये जजमेंट्स मैंने कुछ कंपाइल किए, जिनमें बोला गया कि रिट पिटीशन इज मेंटेनेबल एज देयर इज नो अल्टरनेटिव रेमेडी ड्यू टू द नॉन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, ड्यू टू द नॉन फॉर्मेशन ऑफ सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, दैट इज जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। Allahabad High Court Rahul Traders versus State of UP, Calcutta High Court Surinder Kumar Kotnala, then Rajasthan High Court Mega Jewels Private Limited। इनकी क्योंकि कोई alternate remedy exist नहीं करती है, since ट्राइब्यूनल नहीं फॉर्म हुआ है, इसलिए आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में केस ला सकते हैं, हाई कोर्ट उसको सुन के डिस्पोज ऑफ करेगा। अब सर क्वेश्चन आता है कि मैंने जो 10% 107 में और 20% 112 सेक्शन में, मतलब फर्स्ट अपीलेट और सेकंड अपीलेट में मैंने जमा कराया, टोटल 30% मैंने अगर आज तक जमा कराया और मैं केस जीत गया, तो उसका क्या होगा? तो वो आपको इंटरेस्ट जो है रिफंड मिलेगा, और रिफंड आपका विद इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, ना कि जिस दिन आप रिफंड मांग रहे हैं या जिस दिन आप केस जीते, जिस दिन आपने पेमेंट करी गई। क्योंकि केस जब आप जीत गए तो आपका वो टैक्स कभी बनता ही नहीं था, लेकिन सरकार ने ले लिया एज अ वे ऑफ प्री डिपॉजिट। तो जिस दिन आपने पे करा से लेके जिस दिन आपको रिफंड मिलेगा, आपको जो है इंटरेस्ट ग्रांट होगा। सेक्शन 56 में रिफंड ग्रांट होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑफ 2017 द्वारा नोटिफाई की गई है, जिसमें 6% आपका इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ रिफंड। हाई कोर्ट की अपील का प्रोविजन है, आपको 180 दिन का टाइम लिमिट है, जिसमें आपको असेसी या डिपार्टमेंट को अगर अपील करनी है तो वो कर सकता है, और मैक्सिमम कॉन्डोनेबल पीरियड एज द हाई कोर्ट में डीम फिट। रेलेवेंट फॉर्म्स जो हैं ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं। अब ट्राइब्यूनल अभी बना नहीं है, ये फॉर्म्स में भी हो सकता है कल को अमेंड हो जाए, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जो है APL 5 ट्राइब्यूनल में असेसी है, APL 7 डिपार्टमेंट को अगर अपील करनी है तो, और क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं तो आपको APL 6 में फाइल करने हैं,
और फाइनल एक्नॉलेजमेंट अगेन APL 2 में आएगी। अगर हाई कोर्ट में जाना है तो APL 8 फॉर्म जो है एसएससी का नोटिफाइड है, डिपार्टमेंट का कोई नोटिफाइड नहीं है। अपील किस केसेस में आप नहीं फाइल कर, बोर्ड ने कुछ मॉनेटरी लिमिट्स डिफाइन कर रखी है जिसमें एसएससी डिपार्टमेंट अपील नहीं करेगा, तो एसएससी की कोई मॉनेटरी लिमिट्स नहीं है। एसएससी की जो लिमिट है, लिमिटेशन है, वो सेक्शन 121 में है कि वो अपील कब फाइल नहीं कर सकता है। ट्राइब्यूनल में 50,000 की है, वो भी डिस्क्रिशन पे कि ट्राइब्यूनल 50,000 से कम की अपील सुनना चाहे तो सुन ले, ना सुनना चाहे तो ना सुने। लेकिन एसएससी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एसएससी की रेस्ट्रिक्शन हम 121 सेक्शन में पढ़ेंगे, लास्ट सेक्शन में। डिपार्टमेंट की जो रेस्ट्रिक्शन है वो सेक्शन 120 में, जो डिपार्टमेंट सीबीआईसी डिफाइन करेगा मॉनेटरी लिमिट्स। अगर अपील फाइल नहीं करी है तो वो ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बनेगी। मान लीजिए एक्स कैटेगरी ऑफ सर्विस में 20 लाख रुपए की मॉनेटरी लिमिट डिफाइन कर दी, केस 20 और डिपार्टमेंट ने अपील नहीं करा, अब सब्सिक्वेंट पीरियड में केस 50 लाख का है, तो एसएससी ये नहीं बोलेगा कि पुराने पीरियड में मेरा ऑर्डर मान लिया डिपार्टमेंट ने, पीरियड का ऑर्डर आप अपील नहीं कर सकते। वो कर सकता है, उसको अपील करने से रोका नहीं जाएगा और ना ही वो ऐसा प्रेसिडेंट बनेगा। जीएसटी की मॉनेटरी लिमिट्स अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है। पुरानी रिजीम की मॉनेटरी लिमिट्स जो है 25 जून 2018 के लेटर इंस्ट्रक्शन से नोटिफाई की गई थी। बेसिकली उसमें एनहेंस की गई थी कि सी स्टैट में 20 लाख, तो अगर 20 लाख से कम का केस है और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने ड्रॉप कर दिया है तो डिपार्टमेंट अपील। हाई कोर्ट में 50 लाख, तो अगर मान लीजिए सी स्टैट ने 25 लाख रुपए का कोई केस फेवर में कर दिया है तो डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये हाई कोर्ट या सी स्टैट ने 75 लाख रुपए का कोई केस ड्रॉप कर दिया, डिमांड ड्रॉप कर दिया, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत है। और क्योंकि वो 1 करोड़ से कम की अमाउंट है तो डिपार्टमेंट उसमें नहीं जाएगा। अब एसएससी के एंड पे नॉन अपीलेबल डिसीजन या ऑर्डर्स कौन से हैं? पहला ऑर्डर जो, अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल है आपका, पहले जुरिस्डिक्शन थी, जैसे दिल्ली में 4 जुरिस्डिक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो मान लीजिए पहले आपका नॉर्थ में एडजुडिकेट होना था, लेकिन आपने एड्रेस चेंज करा लिया जिसकी वजह से वेस्ट में चला गया, और इंटरनल एक कोरिजेंडम पास हुआ जिसमें ये बोला गया कि ये जो ऑर्डर पास है वो नॉर्थ की जगह ईस्ट के कमिश्नर साहब करेंगे, तो या वेस्ट के कमिश्नर साहब करेंगे, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कोई अपील नहीं, आपको अगर आप इन 4 ऑर्डर से अग्रीव्ड हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप अपील नहीं डाल सकते हैं। अगर कोई, ये हमने पिछले सेशन में हमने पढ़ा था इंस्पेक्शन सर्च सीजर में कि सेक्शन 67 का कोई सीजर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर्स का या डॉक्यूमेंट्स का, तो उसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आपको लगता है रॉन्गफुल सीजर है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में रिट डाल सकते हैं। ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर डी एक्ट, इन दैट केस द सच ऑर्डर इज नॉन अपीलेबल। ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 80 ऑफ द एक्ट, मतलब 80 सेक्शन बात करता है कि आपको टैक्स की पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड है करना। कमिश्नर को आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को आप इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स पे करने की इजाजत दीजिए, और कमिश्नर 24 इंस्टॉलमेंट्स में, मैक्सिमम 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब 2 साल के अंदर अंदर आपको इंस्टॉलमेंट्स बता सकता है कि आपको, तो अगर कोई इंस्टॉलमेंट्स का ऑर्डर है तो आप अपील नहीं डाल सकते। हाउएवर इफ यू आर अग्रीव्ड विद दैट ऑर्डर, अगेन यू कैन गो डायरेक्टली टू दी हाई कोर्ट। ये सारा डिस्कस करने के बाद लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं कि किसके अगेंस्ट में कहां मेरे को रिप्लाई फाइल करना है, कहां अपील फाइल करनी है, वो कैसे डिटरमाइन होगा। आपने सब बता दिया, टाइम लिमिट, कितने टाइम में अपील होनी है, कितने टाइम में रिप्लाई देना है, किस फॉर्म में देना है, लेकिन कहां देना है ये कैसे पता चलेगा। तो ये हायरार्की जो है हम डिस्कस करते हैं। अगर आपकी जीएसटी डिमांड 20 लाख से कम है या 20 लाख की है, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में या 1 करोड़ से ज्यादा है, उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपकी कौन है। तो अगर लेस देन 20 लाख है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की पावर जो है सुपरिटेंडेंट को दी गई है। 20 लाख से 1 करोड़ है तो डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर को ऑर्डर इन ओरिजिनल पास करने की पावर दी। 1 करोड़ से ज्यादा है तो एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर को पावर दी। अगर सुप्रीम कोर्ट या डेप्यूटी कमिश्नर का ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट में फर्स्ट अपील जाएगी ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर अपील्स को, और अगर एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर का ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट में अपील जाएगी कमिश्नर अपील्स को। तो ये चार्ट बनाना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास एसएससी आते हैं जो ये पूछते हैं कि सर मैं अपील कहाँ डालूं, मेरे को अपील सुपरिटेंडेंट का ऑर्डर है, डीसीएससी का है, एडीसी जेसी का है, मेरे को अपील कहाँ डालनी है। क्योंकि पहले रिजीम में क्या होता था, ऑर्डर की अपील कहाँ डालनी है, लेकिन आज जीएसटी में ये नहीं लिखा आता है। तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन फर्स्ट हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू पास द ऑर्डर, एंड देन once it has been determined and the order has been correctly passed by the competent authority, then who is the competent authority to entertain the appeal, where I have to file the attendant or deputy commissioner, additional commissioner, assistant commissioner का order है तो joint commissioner, additional commissioner appeals के पास आपकी अपील जाएगी,
और अगर एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर का ऑर्डर है तो कमिश्नर अपील्स के पास और दोनों ही सिनेरियो में कि जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या फिर कमिश्नर अपील्स के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील जो है आपकी ट्राइब्यूनल में जाएगी। अब एक बहुत छोटा सा सेक्शन रिवीजन का हम डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल चीज है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। रिविजनल अथॉरिटी जो है सुओ मोटो या फिर डिपार्टमेंट के बोलने पे कोई भी ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया। मतलब हम कौन सा ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हम DRC 7 की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शंस क्या है कि ऑर्डर आप ऑलरेडी अपील में डाल चुके हो, इस एक्सेप्शन से ही सेक्शन 108 जो है वो खत्म हो जाता है मैक्सिमम, क्योंकि ये बहुत आधा % या 1% केस ऐसे होते हैं कि आप ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील ना करें, उसको मान या फिर आप उस पर बैठे रहें। तो अगर ऐसा कोई केस है जिसमें ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं करी है, या ना तो एसएससी ने करी ना डिपार्टमेंट ने करी, तो उस केस में रिविजनल अथॉरिटी के पास पावर है कि दे कैन सुओ मोटो और अपॉन एन एप्लीकेशन दे कैन मॉडिफाई द ऑर्डर। अगर टाइम पीरियड अपील का लैप्स नहीं हुआ है, मतलब का टाइम लिमिट है, आप उसके अंदर रिवाइज नहीं, अगर ऑर्डर पास होने से 3 साल लैप्स हो गए तो मैक्सिमम टाइम लिमिट जो रिविजनल अथॉरिटी के पास रिवाइज करने का है वो 3 साल का है। और अगर कोई ऑर्डर ऑलरेडी एक बार रिवीजन हो चुका है तो वो दोबारा रिवीजन नहीं हो सकता। कोई एडवर्स अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपको कोई लगता है कि यार कोई गलती ऐसी हो गई है जिसकी वजह से डिमांड कम कैलकुलेट हो गई है, तो आपको पहले हेयरिंग देनी पड़ेगी RVN 01 में। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं कि आपको सामने वाले को मौका देना पड़ेगा RVN 01 में, और फिर ही आप जो है डिमांड को बढ़ा सकते हैं, उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। और इस ऑर्डर की समरी जो है APL 04 में पास हुई। तो thank you so much for everyone for joining us today.